میرے اور میرے شوہر کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ غلط تھا، بہت بڑا گناہ تھا، بلکہ گناہ کبیرہ تھا۔ مجھے اور میرے شوہر کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ گناہ مانا جاتا ہے، اور ہم اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھے، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ روزانہ گناہ کر بیٹھتے تھے۔ ہماری پسند کی شادی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور ہم 2 سال سے ساتھ رہ رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ پھر اچانک ہمارے درمیان میرے شوہر کے غصے نے ایک دیوار سی کھڑی کر دی تھی، جس کے بعد ہم روزانہ گناہ کرنے لگے تھے۔ ایک روز اچانک ایک چھوٹی سی بات پر میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں تو خود پر جان چھڑکنے والے شوہر کے اس عمل پر صدمے میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے طلاق کیسے دے سکتا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا ہم نے اپنے گھر والوں سے لڑ کر ایک دوسرے سے شادی کی تھی، اور اب کہیں جا کر ہم نے اپنے گھر والوں کو راضی کیا تھا۔ میں دکھ سے رو رہی تھی اور میرا شوہر بھی اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے پر سر پکڑ کر بیٹھا تھا، کیونکہ عجیب بات یہ تھی کہ نہ میرا شوہر مجھے چھوڑ سکتا تھا اور نہ میں اسے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس طلاق کا حل ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے فتوے لیے اور عالموں سے بات کی، مگر ہر جگہ سے یہی پتہ چلا کہ طلاق ہو چکی ہے اور حلالہ کے بغیر ہمارا ملنا مشکل ہے، بلکہ حلالہ کے بغیر ہمارا ایک ساتھ رہنا بھی ممکن نہیں۔ جبکہ میں اور میرا شوہر ہم دونوں ہی حلالہ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ میں اپنے شوہر پر بھی غصہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے ہم اس مشکل میں آ چکے تھے، مگر اب اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم کافی عرصے تک ایسے بیٹھے رہے اور کوئی نہ کوئی حل سوچنے کی کوشش کرتے رہے، جس میں ہم ساتھ بھی رہتے اور ہمیں حلالہ کی ضرورت بھی نہ پیش آتی۔ ساتھ رہنے اور حلالہ سے بچنے کی اس کوشش میں ہم سے گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے تھے، اور ہم نے اس گناہ سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں بچ پائے، اور یوں ہماری طلاق کو تقریباً مہینہ ہو گیا تھا۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے تھے، ہمیں اچھی طرح سے پتہ تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو گئے تھے۔ مگر میرے اندر گناہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، میں چاہتی تھی اس بوجھ سے آزادی ملے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حلالے کا مطلب تھا کہ میرا شوہر خود مجھے کسی اور مرد کے حوالے کر دیتا، اور مجھے یہ سوچ کر بھی رونا آتا تھا۔ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے ایسے سکون بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ایک روز روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈو، کیونکہ میں مزید گناہ گار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے بے چارگی کا اظہار کیا اور بولا کہ میں کیا کروں، میں تمہیں حلالہ کے نام پر کسی اور مرد کے حوالے بھی نہیں کروں گا۔ میری ضد پر میرے شوہر نے مجھے عجیب سی بات کی اور بولا کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے غصے میں غلطی سے طلاق دی تھی، اور میرا مقصد ویسا نہیں تھا، اس لیے ہمارے درمیان طلاق نہیں ہوئی، اور اگر پھر بھی تمہارا دل نہ مانے تو یہ مان لو کہ ایک بار کی دی ہوئی طلاق کو طلاق نہیں مانا جاتا۔ میرا شوہر مجھے عجیب و غریب سے دلائل دے رہا تھا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں اور دوبارہ اسے ایسی کوئی بات نہ کروں، مگر میں ایک بار شعور اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، میں اتنا بڑا گناہ کر کے اس سے آسانی سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی، وہ بھی صرف اپنی مرضی اور سکون کے لیے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ مجھے طلاق دے چکا ہے اور ہمارے درمیان اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ میں چیخنے لگی کہ وہ آخر ہمارے رشتوں کو بچانے کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہم روزانہ گناہ کبیرہ کر رہے تھے اور ہماری درمیان طلاق ہو چکی تھی تو اس بار ہمیں معاف نہ کیا جاتا اور ہمیں الگ کر دیا جاتا۔ میری اس بات پر میرا شوہر گھبرا گیا اور مجھ سے منت کرنے لگا کہ اگر میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں تو ہمارا یہ راز کبھی نہیں کھلے گا۔ میرا شوہر مجھے اس بات کے لیے منانے لگا کہ میں کسی کو ہماری طلاق کے بارے میں نہ بتاؤں۔ میں اپنے شوہر کی ان باتوں پر مزید دکھی ہو گئی تھی، اسے محبت نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دن رات جب اپنے شوہر پر زور دینا شروع کیا تو وہ مجھ سے کنارہ کشی کرنے لگا، مگر میں اپنے شوہر پر دباؤ ڈالنے لگی کہ وہ ہر حال میں کوئی حل ڈھونڈے، ورنہ میں کبھی سکون نہیں پا سکوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے حلالہ کر لیں گے تاکہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو نہ پتہ چلے اور ہم بھی اپنے گناہوں سے بھی نجات حاصل کر لیں۔
मेरे मुसलसल दबाव पर पहले तो मेरा शौहर मुझे रोज़ाना ये कहकर टाल देता कि काबिल भरोसा मर्द ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे किसी अनजान को पकड़कर हलाला नहीं किया जा सकता। जब मैं डिप्रेशन की मरीज़ा बनने लगी तो मेरे शौहर को वाकई बेचैनी होने लगी। इसे समझ आ गया कि अब कोई ना कोई हल ढूंढना ज़रूरी हो गया। फिर एक रोज़ अचानक मेरे शौहर अपने साथ एक बच्चे को घर ले आया। वो एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र बमुश्किल 10 बरस थी। मैंने इस बच्चे को देखकर हैरत से अपने शौहर को देखा और सवाल किया कि ये बच्चा कौन है। मुझे लगा कि मेरा शौहर इसे गोद लेने का इरादा कर चुका है, मगर मेरा शौहर बोल रहा था कि वो इस बच्चे को हिलाला के लिए लाया है। मैं तो शौहर से ज़्यादा इस बच्चे का मुंह देख रही थी। मेरे शौहर ने मुझे किसी और मर्द के हवाले करना मुश्किल काम था। मैं खुद भी घबरा गई थी, मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर एक बच्चे को हलाले के लिए लेकर आएगा। मैंने एहतजाज करना चाहा तो मेरा शौहर मुझे एक तरफ लेकर जाकर गुस्से से बोला कि अगर मैं इस बच्चे पर एतराज़ किया तो फिर मैं भूल जाऊं कि कोई हलाला होगा, क्योंकि वह किसी तीसरे मर्द को हमारे दरमियान नहीं लाने वाला था। मैं अपने शौहर की ज़िद से वाकिफ़ थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब अगर मैंने कोई एतराज़ उठाया तो मेरी ज़िंदगी गुनाह में गुजारना पड़ेगी। पहले मैं एक कबीरा गुनाह के मलबे में डूबी हुई थी। मुझे गहरी सोच में मुब्तला देखकर मेरे शौहर ने मुझे समझाया था, और मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरा शौहर बोला कि वो लड़का इतना भी मासूम बच्चा नहीं है। पैसे लेकर हलाला करने को तैयार हुआ है। हलाला करने के बाद हम दोनों फिर से एक दूसरे पर हिलाल हो जाएंगे और मज़ीद हमें गुनाह नहीं करना पड़ेगा। अपने शौहर की बात सुनकर मैंने मजबूरी में हामी भर ली और सर पर दुपट्टा डालकर बैठ गई। मेरे शौहर ने मेरा निकाह इस बच्चे से करवा दिया, और फिर रात के वक्त हमें कमरे में भेजते हुए अचानक मेरे शौहर ने इस बच्चे को एक दूध का गिलास पकड़ाया और कहा कि इसे पी लो। मैंने हैरत से अपने शौहर को सवारिया नज़रों से देखा तो वो बहुत अजीब सी बात बोला था कि मैं इस बच्चे को दूध में ऐसी दवा दी है जिससे वो होश में नहीं रहेगा, और होश आने पर इसे ये रात याद नहीं रहेगी। इस वक्त तो मुझे भी अपने शौहर की बात मुनासिब लगी, और मैंने अपने शौहर को दाद दी कि कैसे इसने समझदारी से हल निकाला था कि हलाला भी हो जाता और पर्दा भी रह जाता। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ इस रात क्या होने वाला था। अगर जान लेती तो अपने शौहर को यूं शाबाश ना दे रही होती। इस बच्चे ने दूध पी लिया तो मैं कमरे में चली गई, मगर कमरे में जाते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, और मैंने बच्चे की तरफ देखा तो मेरा सर चकरा गया। इस रात तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या चाल चली गई थी, और मैं इस हलाला के जाल में फंस गई थी। अगले रोज़ जब कमरे से बाहर निकली तो मेरा दिल बुरी तरह परेशान था और मैं सोच में मुब्तला थी। मेरे शौहर ने परेशानी से पूछा कि मुझे क्या हुआ है, मगर मैं अपने शौहर को टाल गई। अब अपने शौहर को क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं वहीं सर पकड़कर बैठी थी, और मेरे शौहर ने इस बच्चे को बुलाकर पैसे देते हुए कहा कि अब वो मुझे तलाक दे दे। इस बच्चे ने पैसे लिए और फौरी मेरे शौहर की हदायत पर मुझे तलाक देकर वहाँ से चला गया। मेरा शौहर इसकी चाहते ही खुश हो गया और बोला, अब हम अपना रिश्ता जायज़ कर सकते हैं और फिर कोई परेशानी हमारे दरमियान नहीं रहेगी। मैं भी जो सोचकर कदरे मुतमिन हो चुकी थी। मेरे शौहर ने जल्द मौलवी को बुलाकर फिर से मेरे साथ निकाह किया और मुझसे अपने गुस्से में दी गई तलाक पर माफ़ी मांगने लगा, और मुझसे वादा किया कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं दोहराएगा। मैंने अपने शौहर को माफ़ कर दिया और खुश हो गई कि ये मामला सुलझ गया, मगर मुझे नहीं पता था कि आने वाला वक्त मुझ पर कैसी क़यामत लाने वाला था। मगर मैं बहुत खुश थी और अपने शौहर के साथ मेरी ज़िंदगी फिर से पहले वाली हो चुकी थी। ना कोई गम था, ना कोई परेशानी थी। हमने हिलाला करके अपने रिश्ते को भी जायज़ कर लिया था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। मेरा दिल करता कि अब मैं अपनी माँ से मिलूं तो इनको बताऊं कि वो मेरे शौहर को मेरे काबिल नहीं समझती थी, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और मुझे कम उम्री से अपने शौहर पसंद आ गया था, और इसका भी यही हाल था। मगर मेरी माँ को मेरा शौहर बहुत बुरा लगता था, यहाँ तक कि मेरी सास अपने बेटे की ज़िद देखते हुए रिश्ता लाई तो मेरी माँ ने इनको भी साफ अल्फाज में कह दिया था कि तुम्हारा बेटा इस काबिल नहीं है कि मैं अपनी बेटी दे दूँ। तब हमारे घर में बहुत हंगामा खड़ा हुआ था। मेरी सास अपने बेटे के बारे में ऐसी बात नहीं सुन सकती थी, इसलिए मेरी माँ से कहकर गई कि अब कभी रिश्ता नहीं लाएगी।
मैं सर पकड़ कर बैठ गई थी। पता नहीं मेरी माँ को क्यों लगता था कि मेरा शौहर इस काबिल नहीं है। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी माँ नहीं मानी थी। वहाँ मेरा शौहर भी अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी माँ दोबारा रिश्ता लाने पर तैयार नहीं हुई थी और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। इसलिए बहुत मजबूर होकर हम दोनों ने ये फ़ैसला किया था कि हम घर से भाग जाएं, क्योंकि मेरे शौहर को लगता था कि जब हम निकाह के बाद अपने वालिदैन को मनाएंगे तो हमारे वालिदैन मजबूर हो जाएंगे। इसने ठीक ही कहा था। हम लोगों ने एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी और हम चाहते थे कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए, ताकि हम अपने वालिदैन को इनकी औलाद की औलाद से मिलवा कर मना लें। मगर अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी थी और मैं अपने माँ बाप के बगैर मज़ीद नहीं रह सकती थी। एक साल बाद मेरी ज़िद पर जब हम वापस अपने वालिदैन के पास गए और इन्हें मनाने के लिए रो धोकर माफ़ियाँ मांगी, तो वो लोग मान गए और हमें फिर से कबूल कर लिया। मगर मेरी माँ ने तब भी मुझे यही कहा कि एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बंदा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो खामियां मैं तुम्हारे शौहर में देख रही हूँ वो तुम कभी नहीं देख सकती और तुम्हारे पास वो तजर्बा भी नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। मैंने अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं किया था और अपनी माँ से कहा था कि मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता है। मेरी माँ खामोश हो गई और मुझे दुआ दी कि मैं हमेशा खुश रहूं और अल्लाह करे इनका वहम गलत हो। मैंने अपने शौहर के साथ 2 साल गुजारे थे और वो वक्त बहुत अच्छे से गुजरा था और मैंने कभी इसमें कोई खामी नहीं देखी थी और इसने मुझे ना कभी कोई तकलीफ़ दी थी ना कोई गम दिया था। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में पहली बार गुस्से में आकर इसने मुझे तलाक दी थी और इसका भी अजाला कर दिया था। वो भी सिर्फ मेरी खुशी की खातिर किया था, क्योंकि इसे नहीं लगता था कि हमारे दरमियान तलाक हुई है और ना ही वो इस तलाक को मानता था। मगर मेरी परेशानी पर इसने एक लड़के के साथ मेरा हिलाला भी करवाया था। मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ को मिलकर ये सब बताऊं कि कैसे मेरे शौहर ने मेरी खातिर मुझ पर अपनी हर जिद को कुर्बान कर दिया था और वो सिर्फ मेरी खुशियों को देखता था। लेकिन मैं अपनी माँ को तलाक का किस्सा नहीं बता सकती थी, इसलिए खामोश रही थी। लेकिन इस हलाले के वाक़या होने के बाद से तो मेरे दिल में अपने शौहर की कदर मज़ीद बढ़ चुकी थी। मैं ये भी भूल गई थी कि मुझे हलाला के मुकाम पर लाने वाला भी तो मेरा शौहर ही था। किसी ने ठीक कहा है कि जो आपको पसंद हो इसकी हर बात भी आपको पसंद होती है। मगर मेरा वो यकीन एक रोज़ अपने शौहर के मुंह से अपने रिश्ते की हकीकत सुनकर खाक में मिल गया था। एक रोज़ मैं किचन में काम कर रही थी जब मेरे शौहर के एक दोस्त इससे मिलने आया। मेरा शौहर मुझे चाय बनाने का कहकर अपने दोस्त के साथ मेहमान खाने में बैठ गया था। मैंने चाय बनाई और अपने शौहर को जाकर दे आई। मैं वापस आने लगी तो मैंने सुना कि मेरे शौहर का दोस्त से बता रहा था कि इसने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दी थी और अब वो पिछले 3 माह से अलग अलग रह रहे थे। वो बहुत उदास था और मेरे शौहर को बताने लगे कि मेरी बीवी को बाहर से खाना मंगवा कर खाने की आदत थी और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। हमारे दोनों बेटे बहुत छोटे थे और एक बेटे को बाज़ारी खानों से हर वक्त मैदे में तकलीफ़ रहती थी। मैं इस बात से बहुत तंग आ गया था और हर वक्त अपनी बीवी को समझाता रहता था कि वो घर में खाना बनाया करे, मगर वो काम से बचने के लिए हर बार छुप कर बाहर से खाना मंगवा लेती थी। एक रोज़ मुझे पता चला तो मैंने इसे सख्ती से धमकी दी कि अगर इसने मेरी बात ना मानी या घर में खाना ना बनाया तो मैं इसे तलाक दे दूँगा। लेकिन मेरी बीवी को ये वहम था कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता और इसे कभी तलाक नहीं दूँगा, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे थे और मैं अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था और मेरे बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब थे। मगर एक रोज़ मैं काम से घर आया तो मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब थी। मैं इसे लेकर अस्पताल भागा तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इसकी आंतों पर ज़ख्म हो चुके हैं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है मगर बहुत चटपटे खाने खाता रहा है। मैंने बेटे से पूछा तो पता चला कि मेरी बीवी अब भी बाज़ार से चटपटे मसालेदार चीज़ें मंगवा कर खुद भी खाती थी और बच्चों को भी खिलाती थी। इसकी ज़िद पर मेरी मर्दाना चोट अना पर चोट लगी थी। मैं मज़ीद इसकी हठधर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और मैंने इसे गुस्से में तलाक दे दी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। मैंने अपने बच्चों का भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे बच्चे माँ के बगैर अब बीमार रहने लगे थे। मैं कोई राह निकालना चाहता था। मैंने बीवी से बात की तो इसकी भी अकल ठिकाने आ चुकी थी और वो वापस आना चाहती थी, मगर हमारे दरमियान तलाक की वजह से कोई रिश्ता नहीं रहा
और हलाला का सोचकर ही मेरा दिल बुरा होने लगता है। मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि बीवी का हलाला करवा कर दोबारा इससे निकाह कर लूँ। अब हमारे घर में कोई औरत नहीं है। मेरे बच्चे सारा दिन अपनी माँ के लिए रोते रहते हैं और मेरे ख़ानदान का मुसलसल मुझ पर दबाव है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। मगर मैं अपनी बीवी को वापस लाना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मेरे शोहर का दोस्त रो रहा था और अपनी परेशानियाँ बता रहा था। मैंने किचन में जाकर तले हुए कबाब एक प्लेट में रखे और चटनी निकालते हुए मैं अपने शोहर के दोस्त की वो सारी बात सोच रही थी कि शायद हर मर्द पहले जज्बाती होकर फैसला कर लेता है और बाद में हलाला की बात आने पर ऐसे ही रोता है। मैं वो कबाब लेकर वापस मेहमान खाने की तरफ बढ़ी थी। अब मैं दरवाजे पर पहुंची थी कि मैंने अपने शोहर की बातें सुनी। मेरा शोहर अपने दोस्त को तसल्ली दे रहा था और हलाले के बारे में बता रहा था, लेकिन हलाले का हाल बताते हुए मेरे शोहर ने इसे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया था और मैं बेजान सी इस दरवाजे पर खड़ी रह गई। मेरा शोहर मज़े से बोल रहा था क्योंकि इसके ख्याल में तो मैं चाय देकर जा चुकी थी। मैं पहली बार अपने शोहर का वो रूप देख रही थी। वो किसी सोच का मालिक था और वो क्या बोल रहा था। मेरे सर में धमाके हो रहे थे। इसने कैसे मेरे एतबार और मेरे मान का खून किया। मुझे पहली बार अपनी माँ की बात याद आई कि वो इंसान मेरे काबिल नहीं है, और यही सच था। मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी वक्त अपने शोहर को छोड़कर अपने घर चली जाऊं। मैं अपने शोहर को कुछ नहीं बोल सकती थी। जो सच अपने शोहर का मैंने जाना था, इसके बाद बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहा था। वो एकदम मेरे दिल से उतर गया था। मुझ पर अब इसकी हकीकत वाज़िया हो गई थी। मेरे शोहर का दोस्त गया तो वो अंदर आकर मुझे बताने लगा कि इसने अपने परेशान दोस्त को हलाला का हाल बताया है और इसे समझाया है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ये हाल अगर अल्लाह ने दिया है तो फिर इसके बाद सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सोच रहा था कि इसका दोस्त बहुत परेशान था और मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और मैं मुसलसल अपने शोहर को देख रही थी जो मुझे पहली बार बिल्कुल अनजान शख्स लग रहा था। अचानक मैं फ़ैसला करके उठी और अपने शोहर से कहा, मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। मैंने झूठ बोला कि मुझे मेरी माँ याद आ रही है, इसलिए मेरा दिल कर रहा है कि हर हाल में मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मेरा शोहर मेरी अचानक बात पर हैरान हो गया था और मुझसे बोला कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, अचानक क्या हो गया। वो मेरे लिए फ़िक्रमंदी ज़ाहिर कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बिल्कुल अनजान शख्स के सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए इसके सामने रुकना भी मुहाल हो गया था। मैंने अपने शोहर को टाल दिया और कहा कि मैं सिर्फ़ अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ और मैंने सिर्फ़ 3 दिन के लिए इनसे मिलने जाना है। मेरे शोहर ने मेरी उदासी देखी तो वो मान गया, क्योंकि वो जानता था कि मैं अपनी माँ के लिए ऐसी ही जज्बाती हूँ। बहरहाल मेरी ज़िद करने पर मेरा शोहर मुझे चंद दिन के लिए मेरी माँ के घर जाकर छोड़ आया था। मैं अपनी माँ से मिली तो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाई। फूट फूट कर रोती हुई रही और अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ सब सुनकर हैरान रह गई थी। फिर मुझे तसल्ली देते हुए अफसोस से बोली कि मैंने तो तुमसे कहा था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। इस शख्स में अखलाकियात और अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, और ये बात मैं इसकी शख्सियत में बहुत पहले देख चुकी थी और मैं तुम्हें यही समझाना चाह रही थी, मगर तुमने ज़िद की और मेरी बात नहीं मानी। मैंने माँ से रो कर कहा कि मैं अब समझ गई हूँ कि औलाद का तजर्बा माँ बाप के तजर्बे से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर तुम औलाद की चाहती हो और तुम्हारी अकल जगह पर आ गई है तो फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं सब संभाल लूँगी। तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत दो, अब इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने पहली बार अपनी माँ से सर झुकाकर कहा था कि अब वो जो कहेंगी मैं वो ही करूँगी, मैं इनके साथ हूँ। अब मैं मज़ीद अपने लिए कोई फ़ैसला लेने के हक़ में नहीं थी और ना ही मुझे अपना आप इस काबिल लग रहा था कि मैं अपने लिए कोई फ़ैसला ले सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला इतना गलत ले लिया था। एक गलत शख्स का इंतखाब कर बैठी थी जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और अगले ही रोज़ मेरे शोहर को फ़ोन कर दिया कि अब मेरी बेटी के साथ तुम्हारा कोई तल्लक नहीं रहा, इसलिए तुम मेरी बेटी को लेने कभी मत आना और ना ही मेरी बेटी से कोई बात करने की कोशिश करना। मेरा शोहर तो ये सुनकर बौखला गया और पहली फहरिस्त में भागा आया था।
وہ ہمارے گھر آ کر کہنے لگا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اسے فون کر کے رشتہ ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ وہ اپنے اصلی ضدی لہجے میں بولا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ ماں سے بولا کہ میری بیوی کو بلائیں اور یقیناً اس فیصلے سے انجان ہوگی اور میں آپ کو یہ کھیل نہیں کھیلنے دوں گا۔ میری ماں نے اسے ایسا جملہ کہا جس پر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر میری ماں کو دیکھنے لگا، اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے، کیونکہ میری ماں نے اچانک اسے کہہ دیا تھا کہ تم کس بیوی کی بات کر رہے ہو؟ وہی جسے تم چند ماہ پہلے طلاق دے چکی ہو اور جس سے تم نے خود رشتہ توڑ دیا تھا۔ میرے شوہر کو لگا کہ میں نے بھول کر اپنی طلاق کا ذکر اپنی ماں سے کر دیا ہے، اس لیے وہ بوکھلا گیا اور میری ماں سے کہا کہ میں نے غصے میں طلاق دی تھی، مگر میں نے اس کا ازالہ کر دیا ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی کے کہنے پر الالا کروایا تھا اور پھر اس کے بعد اس سے نکاح کیا تھا، اس لیے اب میرے درمیان کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے۔ تب میری ماں نے اس کی ڈٹائی پر وہ سچ بتا دیا جو میں ماں کو پہلے ہی بتا چکی تھی، اور یہ سچ جو وہ شخص کتنے ماہ سے مجھ سے چھپا رہا تھا، مگر میں اپنے دوست کے سامنے کھل گیا تھا۔ حلالہ کی رات میرے شوہر نے اس لڑکے کو دودھ میں نشہ ملا کر دیتے ہوئے مجھ سے کہا تھا وہ چاہتا ہے لڑکے کو یہ رات یاد نہ رہے، اور پھر اس نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے ایک جوس کا گلاس دیا تھا، کیونکہ میں نے سارا دن گھبراہٹ میں کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ میرے شوہر نے اس جوس میں بھی نشہ آور دوا ملا دی تھی، اور اس رات میرا نکاح اس لڑکے سے ہو چکا تھا، اور جب میں کسی دوسرے کے نکاح میں تھی میرے شوہر نے وہ رات بھی خود میرے ساتھ گزاری تھی۔ اس نے لڑکے کو نشہ اس لیے دیا تھا تاکہ وہ لڑکا مجھے کبھی یہ سچ نہ بتا سکے۔ اس رات اس کی جگہ میرا شوہر خود کمرے میں آیا تھا۔ میں نے جب کمرے میں قدم رکھا تو وہ نشے کی حالت میں نیند میں آ گئی تھی۔ میں نے جب لڑکے کو دیکھا تو وہ بھی بے ہوش پڑا تھا۔ میں تو ٹھڑک کر رہ گئی کہ میں اس رات بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب اگلی صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ لڑکا ویسے ہی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں اپنی حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی، میرا دل عجیب کیفیت میں سے تھا، وہ لڑکا تو ہوش میں نہیں تھا۔ پھر کیسے یہ ممکن ہوا تھا کہ میں اپنے شوہر کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گئی تھی کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن اس روز میرے شوہر نے اپنے دوست کو بھی وہی سب دہرانے کا مشورہ دیتے ہوئے خود اپنے منہ سے یہ سچ اگل دیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میرے شوہر نے بہت ہنگامہ کیا تھا، بالآخر تھک ہار کر وہ مجھے چھوڑ گیا اور میں ہنسی خوشی اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔